Hello, dear friends. Welcome to Unacademy Gate MEPI XE. This is your educator Aprup Rao, and you are watching Concepts in Minutes. And in this video, we are going to discuss the concept of Mohr's circle. What exactly is Mohr's circle? कहाँ से आया है ये concept? From where this concept was derived? Why do we use this concept? What is the significance of this concept? So, beta, these are the questions which usually comes in mind of a student when he or she is reading these kinds of concepts, right? जब भी आप ऐसे कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं आपके मन में हमेशा ये सवाल आते होंगे कि ये पढ़ क्यों रहे हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये कहां से कनेक्ट होता है, कहां से आता है, इसका क्या यूज है, इसका क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो मेरे भाई इन्हीं कुछ सवालों को आंसर करने के लिए, टू आंसर दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, आई हैव स्टार्टेड दिस लेक्चर सीरीज कॉन्सेप्ट्स इन मिनट्स, वेयर आई एम गोइंग टू डिलीवर the theory, the concept, the significance of different topics, and in this video I am going to talk about Mohr's circle. Okay, now beta, those of you who are watching me for the first time, let me introduce myself. My name is Aprup Rao, All India rank 320, MTech from IIT Kharagpur. My specialization was design. I have 2+ years of experience working in the field of design of cars at Mahindra and Mahindra. I was a part of some very cool projects like XUV, KUV, TUV. Then I decided to quit my job and I started teaching. So I've been teaching for more than 2 years now, and more than 6 years now, and I teach subjects related to design, strength of materials, machine design, theory of machines, and engineering mechanics. And beta, in this video I am going to talk about a concept of strength of material, which is Mohr's circle. Now beta, how we get the Mohr's circle, let's first understand. Okay, so in order to understand the concept of Mohr's circle, you need to understand this. Okay, let's say we have a stress element. आपको पता ही होगा स्ट्रेस एलिमेंट क्या होता है। स्ट्रेस एलिमेंट यानी कि इफ आई शो द स्ट्रेसेस एक्टिंग एट अ पॉइंट यूजिंग एन एलिमेंट, देन दिस इज नोन एज अ स्ट्रेस एलिमेंट. ओके, सो लेट्स से वी हैव अ स्ट्रेस एलिमेंट व्हिच इज शोइंग बाय एक्सियल स्ट्रेस एक्टिंग एट अ पॉइंट. ठीक है, एक पॉइंट पे बाय एक्सियल स्ट्रेस लग रहा है और स्ट्रेस एलिमेंट उस स्ट्रेस को शो कर रहा है कुछ इस तरीके से. ओके, नाउ बेटा, यू माइट सी दिस that the stresses that we have here are the stresses acting on this plane. These two stresses are showing me the stresses acting on this plane. What is this plane, beta? This is the side plane of a body. Okay, if I have a body, then this is the cross sectional plane or side wala plane. So on this plane, sigma x and tau xy are acting. Then these two stresses, sigma y and tau xy, they are acting on this plane. Okay, ये जो top वाला plane है. Okay, so beta, we have the stresses on this plane and this plane. Okay, but what about the other planes? Let's say you want to find stress on an inclined plane. मान लो मुझे इस plane पे stress निकाल. Let's say I want to find stress on this plane. Now you might be thinking, why do you need the stress on this plane? मुझे इस plane पे stress निकालना क्यों है? हाँ कि ना? आपके मन में आ रहा होगा कि इस प्लेन पे स्ट्रेस निकालना क्यों है. तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जिसमें एक बहुत ही सिंपल रीजन मैं देता हूं. लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल रीजन. ओके, लेट्स से यू वांट टू डिजाइन दिस बॉडी एंड यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज सिग्मा मैक्सिमम. ओके, मान लो आपको इस बॉडी को डिजाइन करना है और आपको बताना है सिग्मा मैक्सिमम क्या होगा. नाउ बेटा, यू हैव टू सिग्मास, सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई, एक्टिंग ऑन दिस प्लेन एंड दिस प्लेन. आर दे सिग्मा मैक्सिमम? No, they are not sigma maximum. It is not necessary that they are sigma maximum. In fact, definitely they are not sigma maximum. Sigma maximum will be acting on some other plane. Which plane? You don't know that. You don't know that. So beta, you need to have the equation of sigma with respect to this angle theta. If I have the equation of sigma with respect to angle theta, can I tell you what will be sigma maximum and on which angle theta it will be developed? Yes, अगर आपको सिग्मा की एक इक्वेशन मिल जाए थीटा के टर्म्स में, तब आप बता सकते हो कि थीटा की किस वैल्यू पे सिग्मा मैक्सिमम होगा, राइट? मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट यूज करके. सिमिलरली, लेट्स से यू वांट टू फाइंड टाउ मैक्सिमम, सो देयर विल बी सम प्लेन वेयर देयर विल बी टाउ मैक्सिमम. नाउ यू डोंट नो दैट, बट इफ आई गिव यू द इक्वेशन ऑफ टाउ विथ रिस्पेक्ट टू दिस एंगल थीटा, कैन यू फाइंड आउट वेयर टाउ विल बी मैक्सिमम? At which angle tau will be maximum? Yes. So now you might have understood why do we need the equation of sigma and tau at an angle theta. We have these stresses. Okay, now you might be wondering, sir, from where did I get these stresses?
So beta these stresses are calculated from the equations of strength of material. For example, the equation of stress sigma equals to P by A, or sigma equals to My by I, or tau equals to Tr by J. All these equations give you stresses on this plane and this plane. इनमें से कोई भी स्ट्रेस किसी एंगल पे लग रहा है क्या? नहीं, दे आर एक्टिंग ईदर ऑन दिस प्लेन और दिस प्लेन. सो बेटा व्हाटएवर स्ट्रेस यू कैलकुलेट फ्रॉम इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, दे आर द स्ट्रेसेस एक्टिंग ऑन दिस प्लेन एंड दिस प्लेन. You don't have any equation to find out stresses on this plane. So let's find out the stresses on this plane. So beta, how do we find out the stresses on this plane? So beta, you have two approach. One is known as analytical method, one is known as graphical method. Analytical method में you cut the body, okay, and then you resolve these stresses and you find out the equation of sigma and tau at an angle theta. Okay, now I will not show you the entire method, I will give you the direct equation. Okay, so from analytical method we get the equation of sigma and tau like this. Sigma theta is given by sigma x plus sigma y by 2 minus sigma x minus sigma y by 2 cos 2 theta plus tau xy sin 2 theta. This is the equation of sigma at an angle theta, and the equation of tau at an angle theta is given by this: minus of sigma x minus sigma y by 2 sin 2 theta plus tau xy cos 2 theta. Okay, so beta analytical method से forces वगैरह resolve करके we get these two equations. So this is one method of finding stresses at any angle theta. किसी भी angle theta पे stress निकालना है तो बेटा ये हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया, अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, सिग्मा और टाउ आ जाएगा. नाउ वी हैव अनदर अप्रोच विच इज नोन एज मोहर सर्कल. अब हमारे पास जो दूसरा अप्रोच है उस अप्रोच को हम बोलते हैं मोर्स सर्कल अप्रोच, विच इज अ ग्राफिकल मेथड. अब मैं आपको बताऊंगा कि मोर्स सर्कल आता कहां से. तो मोर्स सर्कल इज डिराइव्ड फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस ओनली. लेट मी टेल यू, कैन आई राइट दिस इक्वेशन लाइक दिस: sigma theta minus sigma x plus sigma y by 2 equal to sigma x minus sigma y by 2 cos 2 theta plus tau xy sin 2 theta. Similarly, can I write this equation like this: tau theta equals to minus of sigma x minus sigma y by 2 sin 2 theta plus tau xy cos 2 theta. yes, ठीक है, मैंने बस इस इक्वेशन में ये वाला टर्म को लेफ्ट साइड लिया है, ठीक है ना, बाकी सारी चीजें सेम है. अच्छा ये प्लस रहेगा, सॉरी, इस इक्वेशन में ये प्लस रहेगा, ठीक है. चलो अब बेटा आपको करना क्या है, अंडरस्टैंड. लेट मी से दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर. ओके, इन दोनों टर्म्स को स्क्वायर करके ऐड कर दो, इन दोनों टर्म्स को स्क्वायर करके ऐड कर दो. व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, लेट मी गिव यू दैट. ओके, आपको अगर करना है तो आप खुद से करके देख सकते हो, मैं आपको फाइनल टर्म बता देता हूं. ओके, ओके, सो यू आर गोइंग टू गेट समथिंग लाइक दिस. ओके, अगर आप इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा. इफ यू वांट यू कैन डू इट ऑन योर ओन, आप खुद करके देख सकते हैं. ओके, अब देखो इस इक्वेशन को कैन यू कंपेयर विद दिस इक्वेशन, x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर. कैन यू कंपेयर दिस इक्वेशन? दिस इक्वेशन इज दिस ऑफ दिस फॉर्म, राइट? व्हाट इज दिस इक्वेशन बेटा? ये क्या है, बचपन में पढ़ा होगा, ये क्या है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, राइट? x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर. ये एक सर्कल की इक्वेशन है और इस सर्कल की इक्वेशन में ए बी क्या है? ए बी इज द
सेंटर, ओके। ए बी क्या होता है बेटा, ए बी सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और आर क्या होता है बेटा, आर होता है रेडियस। और ये जो सर्कल है ये कौन से ग्राफ पे प्लॉट होता है, एक्स वाई ग्राफ पे प्लॉट होता है। सिमिलरली बेटा दिस इज ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विच इज प्लॉटेड ऑन विच एक्सिस बेटा, सिग्मा थीटा एंड टाउ थीटा एक्सिस। ये जो सर्कल है ये कौन से एक्सिस पे प्लॉट होगा, दिस विल बी प्लॉटेड ऑन सिग्मा एंड टाउ थीटा, सिग्मा थीटा एंड टाउ थीटा, ठीक है। एक्स क्या है मेरे भाई, एक्स है सिग्मा थीटा, एंड वाई क्या है मेरे भाई, वाई है टाउ थीटा, ठीक है। मैं तो ऐसा लिख देता हूं, ओके। अब इस सर्कल का सेंटर कहां पे है बेटा, सो व्हाट इज योर ए, योर ए इज दिस, व्हाट इज योर बी, यहां पे बी है ही नहीं, मतलब बी क्या है, 0। तो मेरे भाई इस सर्कल का जो सेंटर है वो कहां पे होगा, इस सर्कल का, ये मेरा सर्कल है तो इस सर्कल का सेंटर कहां पे होगा, इस सर्कल का सेंटर होगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 एंड 0, ठीक है। और इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, इस सर्कल का रेडियस होगा ये सिग्मा एक्स रूट ओवर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। ये आर का स्क्वायर है तो इसका रूट लोगे तो आपको रेडियस मिल जाएगा। तो मेरे भाई दिस इज योर मोर सर्कल। आपको समझ में आ गया होगा मोर सर्कल आया कहां से। अब इसके बावजूद भी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि मेरे भाई इसका मैं करूं क्या, व्हाट शुड आई डू विद दिस सर्कल। तो मेरे भाई आपको मैं समझाता हूं इस मोर सर्कल का आप क्या करोगे, ठीक है। आप इस मोर सर्कल का क्या करने वाले हो। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि ये मोर सर्कल मुझे दिखा क्या रहा है, बता क्या रहा है, ओके। व्हाट दिस मोर सर्कल इज सिग्निफाइंग, that I want to understand first, then I will understand what is the importance of this, okay। तो मेरे भाई सबसे पहली बात तो ये जो स्ट्रेस एलिमेंट मैंने बनाया है, इस स्ट्रेस एलिमेंट में हर एक प्लेन पे कुछ सिग्मा है कुछ टाउ है, राइट। ऑन दिस स्ट्रेस एलिमेंट ऑन एवरी प्लेन देयर इज सम सिग्मा देयर इज सम टाउ, ओके। अब इस पे कोई एक प्लेन ले लेता हूं मैं, लेट मी कंसिडर एनी वन प्लेन, कोई एक प्लेन ले लेता हूं मैं, लेट मी कॉल दिस प्लेन नंबर ए। तो इस प्लेन ए पे कुछ सिग्मा की वैल्यू होगी कुछ टाउ की वैल्यू होगी, राइट। सिमिलरली ये जो प्लेन है इस सर्कल पे किसी एक पॉइंट की तरह होगा। ये जो सर्कल है ये जो प्लेन है ये इस सर्कल पे किसी एक पॉइंट की तरह होगा। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक सिग्मा कोऑर्डिनेट होगा और एक टाउ कोऑर्डिनेट होगा। ये सिग्मा और टाउ कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा, ये सिग्मा और टाउ कोऑर्डिनेट है, इसके ऊपर लगने वाला सिग्मा और इसके ऊपर लगने वाला टाउ। तो आपको समझ में आ रहा है कि मोर सर्कल क्या बता रहा है। मोर सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, इस सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो किसी ना किसी प्लेन के स्ट्रेसेस की वैल्यू हैं। मेरे भाई एक और प्लेन लेते हैं, लेट मी कंसिडर दिस प्लेन, लेट्स से दिस प्लेन इज बी। तो बेटा यहां पे भी एक पॉइंट होगा बी। इस पॉइंट बी पे जो स्ट्रेसेस आ रहे हैं, जो सिग्मा और टाउ के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, वही यहां के सिग्मा और टाउ की वैल्यू है। सो बेटा डू यू अंडरस्टैंड नाउ व्हाट इज अ मोर सर्कल। एवरी पॉइंट ऑन द मोर सर्कल, हर एक पॉइंट मोर सर्कल का इज टेलिंग यू द वैल्यूज ऑफ स्ट्रेसेस ऑन सम प्लेन। किसी ना किसी एक प्लेन के स्ट्रेसेस की वैल्यू आपको कहां से मिल रही है, इन पॉइंट से मिल रही है। तो अगर मुझे वो पॉइंट पता है तो मैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को यूज करके स्ट्रेसेस निकाल लूंगा। एक बार आपने ये सर्कल ड्रॉ कर लिया तो उसके बाद आप किसी भी पॉइंट को लोकेट करके बता सकते हो कि उस पे स्ट्रेसेस की वैल्यू कितनी आ रही है। आपको करना क्या है, आपको बस उसका एक्स कोऑर्डिनेट ले लेना है और वाई कोऑर्डिनेट ले लेना है। एक्स कोऑर्डिनेट दे देगा सिग्मा, वाई कोऑर्डिनेट दे देगा टाउ, ठीक है। अब मोर सर्कल ड्रॉ कैसे करते हैं और इनसे स्ट्रेसेस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, यह जानने के लिए आपको मेरा पूरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का लेक्चर देखना पड़ेगा। आई हैव एक्सप्लेन्ड इन डिटेल, ओके। यहां मैंने आपको बस समझाने की कोशिश की है कि मोर सर्कल होता क्या है, मोर सर्कल क्यों चाहिए, क्या उसका यूज है, ओके।
नाउ बेटा अब आप ये सोच रहे होगे कि प्रैक्टिकल लाइफ में सर ये कहाँ यूज होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ी मैं यूज करूंगा मोर सर्कल। तो मेरे भाई आप लोग एक चीज आप लोग समझते नहीं हो। बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर, आप जरूरी नहीं है कि रोजमर्रा के कामों में ये सारी चीजें यूज करो, लेकिन जो रोजमर्रा के कामों के लिए चीजें बन रही हैं, जैसे एक सेलफोन भी अगर आपका बन रहा है, तो वो सेलफोन डिजाइन करते टाइम उसमें स्ट्रेसेस का कैलकुलेशन होता है। वो स्ट्रेसेस का कैलकुलेशन कहां से होता है? सॉफ्टवेयर से होता है। लेकिन उस सॉफ्टवेयर के पीछे वो सॉफ्टवेयर काम कैसे करेगा, उसका मैकेनिज्म क्या है, उसके पीछे कुछ इक्वेशंस कोड करके डालनी पड़ती हैं। और वो इक्वेशंस क्या हैं? यही तो वो इक्वेशंस हैं, यही तो वो इक्वेशंस हैं। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर आप सोचते होगे कि आजकल तो सब कुछ सर सॉफ्टवेयर से हो जाता है, तो फिर इन इक्वेशंस का यूज क्या है? तो मेरे भाई जो सॉफ्टवेयर के पीछे का कोडिंग है वही तो ये इक्वेशंस हैं। आप ये इक्वेशंस डालोगे सॉफ्टवेयर में और उसको बताओगे कि बेटा ऐसा ऐसा सॉल्व कर देना, तो वो सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करके आपको सब कुछ दे देगा। तो आपको सामने से ये चीजें दिखती नहीं है, लेकिन सॉफ्टवेयर में पीछे तो यही सब हो रहा है ना, जो पहले हम हाथ से करते थे अब वही सॉफ्टवेयर कर रहा है, लेकिन उस सॉफ्टवेयर की कोडिंग में तो ये सारी चीजें यूज होंगी। तो मेरे भाई मोर सर्कल को आप यूज नहीं करते, लेकिन आप जिन चीजों को यूज कर रहे हो ना डेली के बेसिस पे, आप जो चीजें यूज कर रहे हो, गाड़ियां यूज कर रहे हो, आप घर में जो रह रहे हो, ये सारी चीजें जब डिजाइन होती हैं तो उनको डिजाइन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, उन सॉफ्टवेयर्स में यही सारे कॉन्सेप्ट्स डले होते हैं पीछे। ओके, उनकी कोडिंग इन्हीं के ऊपर बेस्ड होती है। ओके, तो आप ये मत सोचा कीजिए कि सर ये मोर सर्कल वगैरह पढ़ के क्या काम। एक बच्चे ने मुझे एक बार एक वीडियो पे कमेंट किया था कि सर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का क्या यूज होता है, बचपन में पढ़ा था आज तक कभी यूज नहीं किया। तो मेरे भाई इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैसे यूज नहीं होता है? आप आज तक जब भी मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट यूज करते हो, डिफरेंशिएशन करते हो कि नहीं? आपको अगर किसी एरिया का कर्व का एरिया निकालना होता है, इंटीग्रेशन करते हो कि नहीं? तो बेटा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो पहली बात हर सब्जेक्ट में यूज होता है। और मान लो आपने अगर यूज नहीं भी किया, बड़े होके मान लो आप जॉब कर रहे हो, आपकी जॉब में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का यूज नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि दुनिया में कहीं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का यूज नहीं हो रहा है। बेटा एक स्पेस सैटेलाइट जो जा रहा है नासा में भी, पीछे जो कोडिंग हो रही है उसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यूज हो रहा है। ये सारे मैथमेटिकल इक्वेशंस जब डिराइव हो रहे हैं तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यूज हो रहे हैं। तो आप ये मत सोचा कीजिए कि किसी कॉन्सेप्ट का आप यूज नहीं कर रहे हो तो उसका क्या यूज है। हर एक कॉन्सेप्ट को हर एक इंसान डेली लाइफ में यूज करेगा, ये जरूरी थोड़ी है कल को आप चाट गुपचुप का ठेला लगाओगे और बोलोगे कि सर मैं तो कुछ यूज ही नहीं कर पा रहा हूं। तो इसमें हमारी गलती तो है नहीं, जिसने ये सिलेबस डेवलप किया उसकी गलती तो है नहीं ये आपकी गलती कि आप चाट गुपचुप का ठेला खोल के बोल रहे हो। कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चाट गुपचुप का ठेला खेलना बुरा है, मैं बस ये कह रहा हूं कि फिर आप ये रिलेट नहीं कर सकते कि मैं यूज नहीं कर पा रहा हूं तो मुझे मेरी पढ़ाई बर्बाद हो गई है। नहीं, कहीं ना कहीं ये यूज हो रहा है, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें यूज होती हैं। ठीक है, तो अगर आप भी जानना चाहते हो कि कोई कॉन्सेप्ट कहाँ यूज होता है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो मेरे भाई बेशक मुझे कमेंट करके इस वीडियो में बताइए कि आप कौन से कॉन्सेप्ट के पीछे का मतलब समझना चाहते हैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस समझना चाहते हैं, रियल लाइफ एप्लीकेशन समझना चाहते हैं। मैं बेशक उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और अगर आपको मेरे लेक्चर्स देखने हैं, फ्री लेक्चर्स देखने हैं और उनके नोट्स डाउनलोड करने हैं, तो बस ये एक लिंक खोल लीजिए tinyurl.com/approve10। इस लिंक को खोलने के बाद आपको मेरी सारी क्लासेस और उनके पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, और आप मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल में मैं अपने आगे आने वाली क्लासेस के लिंक्स और नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम डालता रहता हूं। और अगर आपको मेरे साथ एक फुल स्ट्रक्चर्ड कोर्स में पढ़ना है तो बेटा अनअकैडमी प्लस पे आ जाइए, जहां आपको क्लासरूम लाइक एनवायरनमेंट मिलेगा, ऑन टाइम क्लासेस होंगी, डेली असाइनमेंट्स मिलेंगे, क्वेश्चन बैंक मिलेगा, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, आपको गाइडेंस मिलेगा, सारी चीजें आपको मिलेंगी। मतलब एक क्लासरूम वाला फील आएगा। ठीक है, और मैं ही नहीं, इंडिया के सबसे टॉप एजुकेटर्स जो हैं, जिन्होंने गेट के प्रिपरेशन पे बुक्स लिखी हैं, जिनके नोट्स से क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे एजुकेटर्स जिनको ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, ऐसे एजुकेटर्स अनअकैडमी में पढ़ा रहे हैं और आप उन सारे एजुकेटर्स से पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक सब्सक्रिप्शन और आप सारी बैचेस में सारे एजुकेटर्स से पढ़ सकते हैं। सो बेटा आज ही अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कीजिए। आप ये कोड यूज कर सकते हैं, आपको 10% ऑफ तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ में जब भी आप ये कोड यूज करेंगे तो बेटा मुझे भी पता चलेगा, इट्स अ वे ऑफ telling me that you believe in me, and if you believe in me beta, I will be your personal guide, I will be your personal mentor. Okay, you can also take an academy iconic subscription. iconic subscription में आपको एक पर्सनल कोच मिल जाता है, जैसे जिम में होता है एक कॉमन कोच होता है, एक पर्सनल कोच होता है। पर्सनल कोच के लिए आपको थोड़ा ज्यादा फी पे करनी पड़ती है, लेकिन दैट पर्सनल कोच विल ओनली फोकस ऑन यू
वो सिर्फ आपके ऊपर ध्यान देगा, आपके स्टडी प्लान्स बनाएगा, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेगा, एंश्योर करेगा कि आप उस स्टडी प्लान को फॉलो कर रहे हो। सो इफ यू वांट दैट यू कैन टेक अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ओके, जाने से पहले लाइक बटन दबाना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं और भी ऐसे वीडियोस बनाता रहूंगा और आपके सामने आता रहूंगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।